Hello and welcome. Welcome to a new chapter of Science 2, which is chapter number 2, which is called Life Processes in Living Organisms, Part 1. So, this is the first learning session of this chapter. So, in this chapter today, we are not going to learn something new. All we are going to do is we are going to introduce the chapter and we are going to revise important concepts from previous classes. Okay. The new words we are going to learn in this learning session are first, soluble, next, oxidize, third, respiration, fourth, regulate. Okay, soluble, oxidize, respiration, and regulate. So in today's learning session, basically we are going to discuss the 7 questions of can you recall type given on page number 12 of your textbook. Okay, and through those questions we are going to revise everything which is necessary for us to understand this particular chapter well. Okay, all majority of the answers you will have already studied in your previous classes, 7th, 8th and 9th standard. So the first question for the day is, how are the foodstuffs and their nutrient contents useful for the body? जो कुछ भी हम खाना खाते हैं और इसमें जो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए किस तरीके से यूजफुल होते हैं. ओके, अगेन वेरी इजी आंसर. I wanted to come up with at least 2-3 points by yourself. Okay, so before you all move ahead, I'm going to wait for 5 seconds. I wanted to pause the video for in those 5 seconds and think about at least 2-3 points that can come up as the answer for this question. Okay, I'll wait for 5 seconds. Okay, I hope all of you all have paused the video and have come at least with 2-3 points as answer to this question. So the answer I have written is this. It looks like a big answer. It looks like it is very complicated, but once I explain it to you all, it will become easier. Okay, don't worry. So let us begin with the first point. Foodstuffs and their nutrients are required for normal functioning of our body. हम लोग जो कुछ भी खाना खाते हैं उसमें जो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स होता है हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, फूड स्टफ्स आर ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग डाइजेशन. ओके, डाइजेशन में क्या होता है, अगर वो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से बने तो उनको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है. ओके, और उस कौन से प्रोसेस में कन्वर्ट करते हैं, डाइजेशन में. ब्रोकन डाउन यानी बड़े बड़े मॉलिक्यूल से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बना देते हैं. टू कन्वर्ट देम इनटू सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स. सॉल्युबल मतलब क्या, सॉल्युबल यानी जो मिक्स हो सकता है पानी में. ओके, सो व्हाटएवर वी फूड वी ईट इट गोज फ्रॉम आवर माउथ टू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट. बट वहां से पूरे बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स जाने के लिए वो कैसे जाएंगे, वो ब्लड में से जाएंगे, राइट. और ब्लड में वो मिक्स होना चाहिए. सो ब्लड इज मोस्टली मेड अप ऑफ वाटर, राइट. सो अनलेस एंड अनटिल उसको डाइजेस्ट करके खाने को पानी में मिक्स नहीं किया जा सकता, ब्लड में मिक्स नहीं किया जा सकता, तब तक पूरे बॉडी में नहीं पहुंचने वाला. ओके, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फूड स्टफ्स ड्यूरिंग डाइजेशन टू कन्वर्ट देम इनटू सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स. वो पानी में मिक्स हो जाने चाहिए. सॉल्युबल यानी पानी में मिक्स होता है. विच आर कैरिड बाय द ब्लड टू वेरियस सेल्स ऑफ द बॉडी. एक बार वो पानी में मिक्स होने लायक बन गया डाइजेशन के दौरान, देन दोस न्यूट्रिएंट्स विल गो इनसाइड आवर ब्लड एंड आवर ब्लड विल ट्रांसपोर्ट द फूड थ्रू आउट आवर बॉडी. ओके, the nutrients are oxidized by cellular respiration to release energy. Okay, so we also know कि हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए we need to breathe, we need to take oxygen. Why do we need to take oxygen? Basically ऑक्सीडाइज करना होता है न्यूट्रिएंट्स को. ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है, ऑक्सीडाइजेशन मींस कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन. ओके, सो जब भी कोई भी चीज ऑक्सीजन से कंबाइन होती है वी से इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड. So the nutrients are oxidized by cellular respiration. Respiration मतलब क्या, बेसिकली सांस लेना. ब्रीदिंग इज रेस्पिरेशन. और ये किस लिए लगता है, एनर्जी को रिलीज करने के लिए. हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स में एनर्जी है और उसको रिलीज करने के लिए वी नीड सेल्यूलर रेस्पिरेशन. ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ सम मेजर न्यूट्रिएंट्स आर गिवन. ओके, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स है उनके क्या क्या फंक्शंस है वो दिए. सो फर्स्ट पॉइंट ए, nutrients like carbohydrates and fats provide energy to perform various activities. So if you see, तुम लोग ने कोई भी ऐसा बूस्ट का बॉटल, सीरियल का बॉटल या फिर कोई भी पैकेट फूड लिया जिसके पीछे वो इंग्रेडिएंट्स देते हैं, you can see there will always be some amount of carbohydrates, there will always be some amount of fats. So carbohydrates और fats किस लिए देते हैं वो लोग, basically they give us so that our body can get energy from it. Okay, सो ये इन दो न्यूट्रिएंट्स का काम है बॉडी को एनर्जी देना. नेक्स्ट, प्रोटीन्स. प्रोटीन्स आर मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स. सेल्स में
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा प्रोटीन से बनता है हमारे सेल्स का. ओके, दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स एज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी एंड as they are responsible for building and repairing the body tissues. Okay, so अगर समझो तुम लोग को कोई इंजरी हो जाती है या फिर मसल पेन कर रहा है एटसेट्रा एटसेट्रा, सो जो रिपेयर करने वाला न्यूट्रिएंट है दैट इज योर प्रोटीन्स. ओके, सो बॉडी बिल्डिंग जो करने जाते हैं, जिम वगैरह में जाते हैं, जो वेट्स उठाते हैं, तो उनके केस में क्या होता है, उनके मसल्स फट जाते हैं. ओके, वो लोग इतना वेट्स उठाते हैं एक्सरसाइज करके, उनके मसल्स फट जाते हैं, और मसल्स फटने के बाद प्रोटीन्स आके उसको रिपेयर करता है. पर वो जब रिपेयर करता है तो मसल्स बड़े हो जाते हैं. दैट्स वाई जो कोई भी बॉडी बिल्डिंग करता है, जिम में जाता है, उनके मसल्स एकदम बड़े बड़े दिखेंगे. क्यों? क्योंकि उनके मसल्स फट जाते हैं और फटने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करते हैं. प्रोटीन से वो मसल्स वापस रिपेयर हो जाते हैं एंड वो जो मसल्स का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है इन स्टेप्स में. सो they are called as body building nutrients. Why? They are responsible for building and repairing body tissues को अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो उसको रिपेयर कर देंगे. In our body, proteins are used to make amino acids, hormones and other body chemicals. So हमारे बॉडी में प्रोटीन्स ये सब केमिकल्स भी बनाता है. अमीनो एसिड्स, हार्मोन्स, all these are examples of chemicals. Okay. Point number C and last point for this answer. Vitamins and minerals act as protective and regulating nutrients in our body. Okay, protective is very clear, right? Vitamins and minerals हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाले हैं. एंड रेगुलेटिंग का मतलब क्या है? रेगुलेटिंग का मतलब है जो नॉर्मल प्रोसेस है ये फ्रीली स्मूथली चलना चाहिए, इसलिए वो कंट्रोल करेंगे बॉडी के प्रोसेसेस को. ओके, सो इट इज गोइंग टू कंट्रोल आवर बॉडी सो दैट एवरीथिंग इज गोइंग नॉर्मली. सो दीज वर सम एग्जांपल्स ऑफ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और इनका फंक्शन क्या है. कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स देख लिया, प्रोटीन्स देख लिया, विटामिन्स एंड मिनरल्स देख लिया. ओके, लेट्स मूव अहेड. What is the importance of balanced diet for the body? Balanced diet यानी सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाना. You should get some carbohydrates, you should get some proteins, you should get different types of vitamins, you should get different types of minerals. तो उसको बोलेंगे balanced diet. Okay, सब कुछ थोड़ा थोड़ा. ऐसा नहीं कि रोज सिर्फ राइस ही खाया या फिर रोज सिर्फ एक ही टाइप का सब्जी और चपाती खाया. So that won't be balanced क्योंकि तुम लोग को एक ही टाइप की न्यूट्रिएंट्स बार बार मिलेंगे. Balanced nutrients में you should have different types of vegetables, different types of fruits, different types of dals, different types of sabzis, etc. So that's called as a balanced diet. Okay, so इसका क्या importance है? Again, you all have studied this in detail even in primary school. Okay, so I'm going to wait for some time. I'm going to wait for 5 seconds and I wanted to pause the video and come up with your own points. Okay, when I see your notes, I should be able to see your own unique points in the notes. Okay, I'm going to wait for 5 seconds for you to write your own points. Okay, I hope everyone has paused the video and has come at least with 2 points of their own of importance of balanced diet. Okay, we're going to see what are the points I have written. So the importance of balanced diet is as ये क्या लिखा है मैंने, balanced dies it, ये मैंने गलत लिखा है. ओके, it's not dies it, balanced diet है ये. so ये E कट है and ये I भी कट है. ओके, so DIET diet, not dies it. ओके, so printing mistake हो गया यहाँ पे. The importance of balanced diet is as follows. Okay, it helps in proper growth of body. अगर your body is not fully grown, especially in the age of 0 to 20, तुम्हारी body is still growing, right? तुम्हारी height बढ़ रही है, तुम्हारा size बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, तुम्हारा brain develop हो रहा है, तुम्हारा heart develop हो रहा है, etc. etc. So your body is growing in. So if you want your body to grow properly, then you should have a balanced diet. Okay, next, it increases immune system. Immune system यानी अगर हमारा immune system strong होगा, we can fight whatever bacteria, viruses are attacking our body very easily. अगर immune system हमारा weak होगा, then our body won't be able to fight back against viruses, bacteria and other microorganisms. Okay, so अगर अच्छा immune system चाहिए disease के against अच्छे से fight करना चाहिए तुम्हारी body, then you should have a balanced diet. Third point, it increases capacity of work by providing energy. So अगर तुम लोग को balanced diet मिला,
will also get enough energy to perform all the activities in your day properly. Okay, तुम्हारी काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी. लास्ट, इट इज असेंशियल फॉर गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. अगर तुम लोग को अपना फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ अच्छा रखना है, देन बैलेंस डाइट इज इंपॉर्टेंट. सो फिजिकल हेल्थ तो सबको पता है, राइट? इफ यू ईट हेल्दी फूड योर बॉडी इज गोइंग टू बी फिजिकल. बट मेंटल हेल्थ में भी बहुत फर्क पड़ता है, हम लोग क्या खा रहे हैं उस पे से. ओके, एंड मेंटल हेल्थ के बारे में आजकल काफी बातें होने लग गई है, विच इज अ वेरी गुड थिंग ऑनेस्टली इन आवर सोसाइटी. अभी आजकल लोग मेंटल हेल्थ की भी बात करते हैं. ऐसा नहीं कि फिजिकल हेल्थ अच्छा है तो मेंटल हेल्थ भूल जाओ. सो मेंटल हेल्थ में भी having a balanced diet really helps. So that's it for this answer. We'll move on to the next question. Which different functions are performed by muscles in body? ये हमने लास्ट ईयर ही पढ़ा था in the second semester. We had seen different types of muscles. Okay, so again take some time and try to recall. अगर तुम लोग को मसल्स के एटलीस्ट नाम याद आ रहे क्या 9th स्टैंडर्ड से, कौन से डिफरेंट टाइप के मसल्स हमने पढ़े थे. ओके, आई एम गोइंग टू वेट फॉर 5 सेकंड्स. पॉज द वीडियो, ट्राई टू रिकॉल. तुम लोग को मसल्स के नाम याद आ रहे हैं क्या? ओके, 5 सेकंड्स आर अप. आई होप तुम लोग को एटलीस्ट एक मसल का नाम याद आ गया होगा फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड. ओके, सो दिस इज द आंसर. So muscles are mainly responsible for the movements of human body. Okay, human body में जो कुछ भी movement हो रही है वो basically muscles के वजह से हो रही है. There are three main types of muscles. First was striated muscles. I remember many of us had made presentations in the class for this different types of muscles. So one is striated muscles. Okay, what are striated? उस पे ऐसे vertical lines होते हैं, उसको striations बोलते हैं. So that's why इसका नाम है striated muscles. Okay, एंड इसको वॉलंटरी भी बोल रहा है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉलंटरी? कि ये खुद हमको सोचना पड़ेगा ये काम होने के लिए, अपने आप से नहीं होगा. ओके, सो सोचे, जब हम उसके बारे में सोचेंगे तभी वो फंक्शन, वो मूवमेंट हमारे बॉडी में होगा. ओके, दीज मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स. ओके, hence also called as skeletal muscles. So ये striated muscles है, हमारे बोन से अटैच्ड होते हैं. So क्योंकि बोन से अटैच्ड है और पूरे बोन के ढांचे को क्या बोलते हैं? स्केलेटन बोलते हैं. So इन मसल्स को स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं. ओके, एंड ब्रिंग अबाउट मूवमेंट ऑफ आर्म्स एंड लेग्स. So जब हम लोग हाथ ऊपर नीचे कर रहे हैं या फिर हम चल रहे हैं, भाग रहे हैं, whenever we are moving our legs and arms, these striated muscles are being used. Okay, or skeletal muscles are being used. नेक्स्ट इज नॉन स्ट्रेटेड मसल्स. इन नॉन स्ट्रेटेड मसल्स वो जो वर्टिकल धब्बे होते हैं, दाग होते हैं, वो नहीं होते हैं. ओके, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स में. एंड दीज आर इनवॉलेंट्री. इनवॉलेंट्री यानी अपने आप होते हैं, हम लोग बिना सोचे समझे इन मसल्स को यूज कर रहे हैं. एग्जाम्पल, दीज मसल्स ब्रिंग अबाउट मूवमेंट ऑफ आईलिड्स. आईलिड्स यानी ये आंखों की पलके. सो ये जो पलक झपकते हम लोग हर कुछ सेकेंड्स में, ये हम लोग सोच के नहीं करते, राइट? अपने आप होता है. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इनवॉलेंट्री, अपने आप से हो जाना. Okay, another example is passage of food through alimentary canal. Okay, so हम जब when we chew food and we swallow it, एक बार हम लोग उसको swallow कर लेते हैं तो यहाँ से नीचे पहुंचने तक हम लोग नहीं सोच रहे कि इसको नीचे लेके जाना है, इसको स्टमक में डालना है, उसको इंटेस्टाइन में डालना है, वो सब अपने आप होता है. So again, those things are taken care by non-striated muscles. And last is contraction and relaxation of our blood vessels. So blood vessels है वो कभी कभी पतले हो जाते हैं, कभी कभी जाड़े हो जाते हैं. तो again these are not in our control, ये अपने आप से होते हैं. So all these are taken care by non-striated or involuntary muscles. Last is cardiac. So cardiac ये word का क्या meaning है? I told you last time, right? So cardiac मतलब anything related to heart, we'll say it is cardiac. So cardiac muscles यानी heart के muscles. Okay, so cardiac मतलब related to heart. So cardiac muscles bring about contraction and relaxation of heart. So our heart pumps blood to our entire body, right? So जब भी heart अपना pump कर रहा है, so कौन से muscles use कर रहे हो heart pump करने के लिए? It is using cardiac muscles. Okay. Okay, so let's move on to the next question. What is the importance of digestive juices in digestive system? The simple answer is obviously अच्छा डाइजेशन होगा अगर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होंगे हमारे बॉडी में, और अगर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट नहीं हुए हमारे बॉडी में, डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा. ओके, बट अ बेटर आंसर, 10th स्टैंडर्ड के लेवल का आंसर, साइंस की भाषा में आंसर क्या होगा? ये होगा. ओके, फर्स्ट पॉइंट, डाइजेस्टिव, अगेन डाइजेस्टिंग क्यों लिखा है मुझे पता नहीं, डाइजेस्टिव होना चाहिए. ओके,
let me make that correction. I'm cancelling N and G and I'm writing V E. Okay, so digestive juices contain various enzymes which help in digestion of different types of foods. Enzyme क्या है? Basically chemicals है. Okay, digestion के लिए chemicals है. So digestive juices contain chemicals which help in digestion of different types of food. अलग-अलग types के food को digest करेगा. Next, thus they convert complex food molecules into simpler form. Okay, so अगर तुम लोग कोई भी food item खा रहे हो उसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो काफी कॉम्प्लेक्स है. कॉम्प्लेक्स यानी काफी कॉम्प्लिकेटेड है. कॉम्प्लिकेटेड यानी बहुत ही बड़े बड़े होंगे, बहुत ही अलग अलग टाइप्स के पार्ट्स होंगे उसके. ओके, कॉम्प्लिकेटेड यानी बहुत ही अलग अलग टाइप्स के पार्ट्स होंगे और लंबा मॉलिक्यूल होगा. सो दिखने में बहुत ही डिफिकल्ट लगेगा, कॉम्प्लेक्स लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड लगेगा. सो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स है हमारे बॉडी डायरेक्टली उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो उसको छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना पड़ता है. सो वो काम किसका है? वो काम भी डाइजेस्टिव जूसेस का है. ओके, सो दे कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स जो बड़े बड़े और डिफिकल्ट फूड मॉलिक्यूल्स है इनटू सिंपलर फॉर्म, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा. एग्जांपल्स क्या है? प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड लिपिड्स आर कन्वर्टेड टू fatty acids. Let me read that again. Okay, complex carbohydrates to glucose and lipids to fatty acids. Okay, I think I messed that up again. Let me read this one last time. Okay, complex carbohydrates to glucose, ये first है. Lipids to fatty acids, ये second है. And alcohol, lipids को alcohol में भी convert करेगा. Okay, so these were a few examples कैसे complex molecules को simple molecules में convert करना है. If you all don't understand carbohydrates का क्या मतलब है, glucose का क्या मतलब है, lipids का क्या मतलब है, it's okay to not know right now. When we go inside, go in deep into this chapter, and when we find these words again, we'll see in detail इन सारे words का क्या meaning है. Okay, for now all you all need to remember is complex food molecules को simple food molecules में convert कर देगा. Okay, last point. The digestive food is then absorbed by the walls of small intestine. Okay, so ये जो छोटे छोटे simple molecules में convert किया है, उन molecules को absorb कैसे करेंगी हमारी body? It will be absorbed by small intestine के walls. Small intestine के जो walls है उसको absorb कर देंगे and taken to every cell of the body through blood vessels. So small intestine में से वो सारे nutrients blood vessels में चले जाएंगे और blood vessels में से bloods में से पूरे के पूरे body में circulate हो जाएंगे. So that is the importance of your digestive juices in digestive system. Okay. Next, which system is in action for removal of waste materials produced in human body? So very simple answer. 2 word का answer है. Take some time and try to recall the answer. Okay, 2 word का answer है. Dash system. Okay, which system is in action for removal of waste materials produced in human body? ह्यूमन बॉडी के वेस्ट मटेरियल्स कैसे निकलते हैं बॉडी में से? 2 वर्ड्स को किस सिस्टम से? I'm going to wait for 5 seconds. Okay, I hope majority of you all have recalled what the answer is. The answer is excretory system, right? Excretory system का काम ही है ह्यूमन बॉडी में से जो वेस्ट है उसको बाहर निकालना, right? So the answer is waste material produced in human body are removed by the excretory system. Okay, let's move ahead. What is the role of circulatory system in energy production? So जो कुछ भी circulatory system है, circulatory यानी पूरे बॉडी में ट्रैवल करना. ओके, पूरे बॉडी तक पहुंच जाना, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको बोलेंगे सर्कुलेशन. ओके, सो सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या रोल है एनर्जी को प्रोड्यूस करने में? लेट अस सी द आंसर. In the circulatory system, arteries carry oxygen-rich blood from heart to different parts of body. So पहला पॉइंट क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम है? हमारे आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड में जब ऑक्सीजन आ जाता है तो उस ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचा देगा ताकि पूरे बॉडी में हमारे ऑक्सीजन पहुंच जाए. ओके, सो ये फर्स्ट काम है. सेकेंड, along with oxygen, this blood also contains energy-rich nutrients such as glucose, fatty acids, which are used by cells to produce energy. So जब हमारे arteries ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है
तभी उस ऑक्सीजन के साथ कुछ और भी चीजें होती है उस ब्लड में, जैसे कि न्यूट्रिएंट सच एज ग्लूकोज एंड फैटी एसिड्स। सो ग्लूकोज और फैटी एसिड्स में एनर्जी स्टोर्ड होता है। ओके, सो ये सब एनर्जी रिच जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो ब्लड के साथ ट्रैवल करते हैं पूरे बॉडी में, वो हर सेल में जाएंगे और हर सेल में एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। ओके, सो दैट्स द रोल ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम in energy production. Okay, let us move on to the last question for this learning session. It is, how are the various processes occurring in human body controlled? In how many ways? हमारे बॉडी के जितने भी प्रोसेसेस है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और कितने सारे तरीके हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। Okay, again this also I think you all have studied in detail in 9th standard itself, second term में. So try to recall what the answer could be. Okay. So basically answer में दो words है. So there are two answers. One is dash control. Second is again dash control. तो कौन सा control है कौन सा control? Try to guess what the answer is. Okay, I'm going to wait for 5 seconds. I'll pause the video and try to recall the answer. Okay, let us see how many of you all guessed the right answer. Okay, so the answer was nervous control and chemical control. Both of them we have seen in detail in grade 9 semester 2. Okay, in human beings different body activities are controlled by two mechanisms, nervous control and chemical control. If you remember, nervous का मतलब भी मैंने तुम लोग को बताया था. What is nervous? Nervous मतलब something related to brain and spinal cord. So जब भी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड चीजें होंगी विल यूज द वर्ड नर्वस. जब भी हार्ट से रिलेटेड कोई चीज होगी विल से इट इज कार्डियक. ओके, कूल. सो सेकंड पॉइंट, नर्वस कंट्रोल इज ब्रॉट अबाउट विद द हेल्प ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. ओके, सो नर्वस कंट्रोल कैसे हम लोग लेके आ रहे हैं? ब्रेन को यूज करके, स्पाइनल कॉर्ड को यूज करके एंड स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से जो कुछ भी नर्व्स बाहर निकल रहे हैं, ब्रेन से जो कुछ भी नर्व्स कनेक्टेड है हमारे पूरे बॉडी में, उसके थ्रू हम नर्वस कंट्रोल कर रहे हैं. ओके, सो आवर ब्रेन इज कंट्रोलिंग मेनी फंक्शंस ऑफ बॉडी यूजिंग नर्व्स. ओके, नेक्स्ट, केमिकल कंट्रोल. केमिकल कंट्रोल इज ब्रॉट अबाउट विद द हेल्प ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस लाइक हार्मोन्स. ओके, और हार्मोन्स कौन सीक्रेट करता है? जो कुछ भी हार्मोन सीक्रेट करता है दोज आर नोन एज एंडोक्राइन सिस्टम. ओके, एंडोक्राइन सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जो अलग अलग हार्मोन सीक्रेट करते हैं. So hormones again, what are hormones? They are basically chemicals जो हमारे बॉडी के प्रोसेस को कंट्रोल करने वाले हैं. सो एग्जांपल है इंसुलिन. इंसुलिन क्या करते हैं? हमारे बॉडी के शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है. सो इंसुलिन अगर बहुत ज्यादा होगा, शुगर लेवल कम हो जाएगा. शुगर लेवल कम होगा तो हमें चक्कर आएगी. अगर इंसुलिन बहुत ज्यादा हो गया तो ओके, आई थिंक आई मेस्ड अप. आई वांट टू रिपीट एवरीथिंग अगेन. ओके, सो अगर इंसुलिन बहुत ज्यादा हो गया, अगर इंसुलिन ज्यादा हो गया तो शुगर बहुत कम हो जाएगा. शुगर बहुत कम हो गया तो हमारा ब्लड शुगर लेवल कम होने की वजह से हम लोग को चक्कर आ सकती है. दूसरा ऑप्शन है इंसुलिन बहुत कम हो गया. अगर इंसुलिन बहुत कम हो गया, शुगर लेवल्स विल इंक्रीज एंड अगेन शुगर लेवल्स इंक्रीजिंग इन आवर ब्लड इज अगेन नॉट गुड फॉर आवर बॉडी. ओके, सो दैट इज वन एग्जांपल ऑफ अ हार्मोन. द हार्मोन का नाम क्या है? इंसुलिन. ओके, सो क्या कर रहा है हमारी बॉडी केमिकल सीक्रेट करके हमारे ब्लड के शुगर लेवल्स को मेंटेन कर रहा है. दैट इज वन एग्जांपल ऑफ chemical control. Okay, so that's it for today. Let us see the meanings of different words that we learned today. First is soluble. Soluble यानी पानी में मिक्स हो सकता है, can mix in water. Oxidize यानी to combine with oxygen. Next, respiration. Respiration यानी breathing. And lastly, regulate. Regulate मतलब कंट्रोल करना या फिर मेंटेन करना किसको? मशीन को या प्रोसेस को, so that it works properly. So इस केस में हमारे बॉडी को रेगुलेट करना मतलब बॉडी ठीक से काम कर रहा है कि नहीं उस पर ध्यान देना. ओके, और वो किससे होता है? इट हैपेंस आइदर विद नर्वस कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल. सो दीज आर द वर्ड्स वी लर्न टुडे. एंड अगेन आई वुड encourage you all to make sentences of these all the new words that we learned. Okay, so scientific sentences बनाने की कोशिश करो. For example, soluble के लिए I can make sugar and salt is soluble in water. Oxidize के लिए the iron gets oxidized and we call it as rust. Respiration के लिए the birds find it very difficult to respiration is difficult for birds when there is a lot of air pollution. So respiration भी word बना दिया. Regulate. Our government is trying to regulate each and everything we do these days. So मैंने इन सारे words पे एक sentence बना दिया. So make your own sentence. Okay, don't copy my sentences which I have dictated right now.
इनके मीनिंग्स लिखो और इसमें से सेंटेंसेस बनाओ. Okay, that's it for today. I hope you understood. It was just an introduction to this chapter. From tomorrow onwards, we'll start the actual chapter. जो तुम्हारा portion है 10th standard के लिए. Okay, see you guys. Bye.